Acha ji, welcome to the PIDE webinar on textile value chains. Textile is one of our biggest, in fact, the biggest industry in Pakistan, I should say. Textile is the biggest exporter. Textile probably is also one of the biggest employers. So there are many reasons why we should be looking at the textile industry. And we are collaborating with Aptema today to bring this webinar to you. But let me tell you, this is going to be the beginning of a collaboration because, quite frankly, given the importance of this sector, I think the more research and debate that takes place on this sector, the better off we will be. Because after all, our future does depend on textiles. We are one of the third or the fourth largest grower of cotton. We are a big exporter of cotton textiles, and cotton textiles is a big market in the world. And yes, of course, we should be a part of it, and we should take this subject very seriously. We should, inshallah, have the textile sector that is competitive with the West. And in fact, we should be one of the largest exporters of textiles. So, which is not to say we will not look at other industries, but we will certainly look at textiles very carefully. So this is the cotton value chain that we will look at. Mr. Shahid Sattar, who has been with us before, he is now the CEO of Aptema. He is a major player in Aptema. He runs Aptema. He will begin by telling us about the textile value chain. We have a number of good speakers and good ideas, but let's begin with Shahid Sattar's presentation on the textile sector. Shahid Saab, floor is yours. Thank you very much, Dr. Saab, for this introduction. Yes, the chief executive of Aptema is, by the way, the chairman, and I just am running the day-to-day affairs as the executive director. What I'm going to do is to give an overall view of the textile value chain and where we stand vis-a-vis other countries, rather than giving prescriptions. The other thing that I'd like to bring home is that for any sector to sort of keep up, it needs to innovate, it needs fresh ideas, it needs continuity of policies, it needs a lot of collaboration between the thinking population, i.e. the academics, as well as the people who are in the industry. Unfortunately, that's not happened in the past. And by having this series of webinars, we are hoping to bridge that divide and to sort of get more people interested in researching various aspects of the textile sector so that Pakistan may get to a position where the textile sector, which has the potential of generating at least double the exports that it is currently generating very quickly, so that we can get rid of IMF and other balance of payment problems that we have. With that, I'd like to start with the presentation. Can someone? We can see your presentation. I can't. Okay. You can't? Yeah, I can see it now. Right. Okay, good. Pakistan is one of the very few countries which has a complete textile value chain. I mean, it grows cotton and right down to ultimate fashion, apparel, so on. It does. It has everything. Textiles are the biggest employment generators in Pakistan. And to give you an idea of the value added within the sector, 1.5 kilogram cotton can be converted up to $25 per kilogram in the final product. Next, please. The textile value chain is in Pakistan
is subdivided into various subsectors, and there are very few companies which have uh, operations right along the value chain. This means that you have yarn and thread done separately. Your fabric is produced, woven separately. Apparel is made separately. Then so basically, there's very little vertical integration in this sector. Next, please. The inputs and outputs are shown on the structure of the apparel garment chain. And basically, natural and synthetic fibers are basically are fundamentally the raw materials. Other things are trims, buttons, zippers, plastics, whatever that go into the production at various stages. And as you go along the chain, the value of the product increases manifold. Next, please. This particular webinar is basically focusing on cotton. And in cotton, if you see that we are not doing too well. We are currently Pakistan tons per hectare is 2.5, in fact, lower than that, which is 52% of that of China. We're not doing well in other crops anyway. However, in cotton, we have to do better so that we are able to compete with the international costs. Next, please. This is just a list of the problems that the cotton has at the present, is decreasing profitability of cotton. This is primarily due to a reducing and reduced yield. Because if farmers can produce more per acre, they obviously will earn more per acre. Planting seed is a huge problem, and Khalid Abdullah Saab, who's the cotton commissioner, will elaborate on this. And research support in Pakistan doesn't exist at present. There are insect problems, resistant bollworm, whitefly, and this year, obviously, there was Tididala. The access to our seed technologies has been ad hoc. And ad hoc adoption has led to resistance being generated in those seeds, and they are no longer as prolific as they were in the past. Our water system is also antiquated, and we don't really have levelized fields and so on, although cotton is one crop that needs very little water, but still the amount of water can be used for far more quantities of cotton or other crops. So why waste any? Then there are climate change issues. The climate in Pakistan has been changing due to the climate change issues around the world. Then we have labor issues. The poor quality of our cotton is partially due to the fact that our cotton is all hand-picked, and we don't have machine-picked cotton. This means that the level of contamination in our cotton is higher than in other countries. Then again, insecticide resistance, climate change, I've already touched. Outdated ginning technologies. In Pakistan, the ginning technology that is in use is pre-World War II. And unfortunately, that has a very negative impact on the quality of our products. Again, our testing facilities are also not at par. Next, please. Next, please.
Right. This table shows how, our cotton uh, has area, bales, and yield have all gone down so dramatically over the last 7, 8 years. I mean, if you look at Punjab alone, area has gone down by 27%. Most of it has been lost to sugarcane, which unfortunately the government has been supporting through policies which perhaps have to be debated more. The cotton production has declined by 54%, and yield has declined an overall something like 40% in Pakistan, 30% to be exact, in Pakistan. And yield is the basic determinant of whether a farmer makes money or not. Next, please. Um, if we look at this chart, if we just catch up on yield with China, Pakistan's production will go up to 26 million bales from the current 8.5 million bales that we had last year. So just imagine the potential that is untapped. Next, please. The next graph is even more interesting. In India, decided to go for hybrid cotton and transgenic cotton at a certain point in time in 2002-3, and increased their production from something like 13 million bales to the current 40 million bales, just in a span of few years, whereas we have gone the other way. So we need really to have a rethink on what we are doing with our seed. Next, please. Next slide, please. Right. What do we need to do? We need to improve our seed quality. We need to introduce latest farming and picking practices. We need to reduce contamination. We need to produce longer staple cotton so that we are able to source most of our raw material from within Pakistan rather than importing and letting go of our precious foreign exchange. So the target that we have set and we all are agreed is that in the next 4 to 5 years, we must go to 20 million bales. And this is quite achievable given that we have touched 14 million bales in the past. Next, please. Next slide, please. One of the factors that's affecting Pakistan and limiting the markets for us is that MMF has sort of turned the tables on cotton. What has happened is that the world used to be 70% cotton and 30% man-made fibers just about 10 years ago. Today it is 70% MMF and 30% cotton. So what we are doing is focusing on a much smaller part of the international market and competing within that. Why aren't we competing in MMF? It is because our government it deems fit to support domestic industry, i.e. domestic MMF industry, by giving them a protection of some roughly 18% on imports as in the form of import duties. Now, given those import duties, our products certainly cannot compete with international markets who are sourcing their MMF materials at a far lower rate. This is something so fundamental that needs to be changed that it's embarrassing. Next, please. Just to give you a snapshot of what the textile value chain is about,
is that we have an 8.5% share in GDP. Roughly 60% of all exports of Pakistan are textiles. 40% of manufacturing sector employment is within this chain. This is quite apart from those people who are employed in the agricultural part of the chain, which is in cotton and cotton picking and so on. So if once you add those, the livelihood of 25 million people is directly or indirectly associated with this chain doing well. The next, please. One part of this is that 70% of the textile industry is located in Punjab. The rest of it is basically focused in Karachi. And in Karachi, you have the apparel manufacturers as well as the end chain manufacturers. Basically, the basic part of the industry, which is spinning and weaving, is mostly located in Punjab. Next, please. If you look at back. Hello. Next, please. Yeah. China had $302 billion of the textile exports, whereas Pakistan had only $13 billion. And if you look down the chart here, so we are basically highly insignificant. We form a very highly insignificant part, just 1.6% of the total trade in textiles. If you look at the chart below, you'll see that Pakistan has sort of languished between 10 and 15 billion dollars, whereas other countries who were right there between 10 and about $10 billion in 2002 have taken their exports up to 40 billion or multiplied by 4 or multiplied by 3. In China has increased 365%, Bangladesh by 201%, Vietnam by 252%, Cambodia by 434%, and even India by 70%. Yet we have, made insignificant progress in this. And there are various reasons which our speakers down the chain will respond to. Next, please. This is just a listing of the strengths and opportunities and internal and external challenges that this sector faces. And I won't spend much time on this because I'd like the other speakers to elaborate on this. Next, please. This shows what exactly was traded in textiles. If you look at it, articles of apparel and clothing are 227 billion, whereas and most of these are MMF based. So we are excluded from these markets. Where we excel or where we have our much higher market share is basically in those products which use more cotton, such as bed sheets and clothing for hospitals, etc., towels. So we need to diversify. Next, please. Next, please. Right. The European Union by far was the biggest market, 258 billion, and the next being USA, and other markets are much smaller. Fortunately, the European Union gave us a special status over the last few years, and that is continuing so far, and which is GSP Plus, and which has allowed us to continue marketing in the EU. But we have not seriously met all the concerns that the European Union has. And the European Union has concerns on sustainability,
on environmental issues, on child labor, etc., etc. These are concerns that are very genuine, and we really need to have continuous dialogue and continuous monitoring so that our exports are not hampered by any misalignments. Next, please. This is a chart showing the relative export performance of various economies in textiles. And as you can see, we are right down next to Indonesia. In fact, Indonesia, South Korea, and Pakistan are virtually in the same ballpark. And China, by the way, has 33%, 1/3 of the world market. So, and a lot of that world market is now slipping away from China, is now moving towards other countries. The time is now for Pakistan to move forward and capture those markets. If we do not do so, India, Bangladesh, Vietnam. Shahid sir, try and wrap up in 3 minutes. Certainly, in just 2 minutes. The next slide, please. This is just a chart showing that we have not moved as fast as our competing countries. And the last slide that I have is basically what we should do. Next slide, please. What we should do to have a competitive textile market, a textile sector. And to have all of these will be dilated upon by our other speakers and later seminars. But I'd be happy to share this presentation with whomsoever wants. Thank you. Thank you very much. Very good presentation. Thank you. Khalid Abdullah sir, please बताइए ये जो हम इतनी बात सुनते रहते हैं कि cotton कि हमारे इतने प्रॉब्लम्स हैं कि सीड भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, वगैरह वगैरह, या 1000 चीज़ें हैं. तो कॉटन कमिश्नर तो हमारी बहुत पुरानी एक इंस्टीट्यूशन है, कॉटन कमेटी भी है. तो क्या वजह है कि व्हाट इज द रीजन दैट द टेक्सटाइल sorry, I should keep saying textile, the cotton crop or the agricultural basis of cotton is still not well established in Pakistan. Yields are low, productivity is low, input availability is not up to the mark. Please, can you educate us on this? Sure. Can you hear me? We can hear you very well. बताइए. Can you hear me? We can hear you very well. We can hear you very well. मेरा ख्याल he can't hear us. Okay. Khalid sir, can you hear? Khalid sir, can you hear us? जी. ये एडमन से रिक्वेस्ट है, ये मुझे एक मैसेज आ रहा है बार-बार, एडमिट वेटिंग रूम और इस किस्म के. तो you don't worry about it. वो अब लोग कर लेंगे. Don't worry about it. Don't worry about it. वो हमारा काम है. आप अपना बोलिए जी. बिल्कुल. हाँ, बोलिए. All right. First of all, sir, thank you very much, Nadeem Saab, and तमाम participants को बहुत शुक्रिया कि giving me this opportunity to talk to you on cotton. It's really very important subject, not only for Pakistan, for livelihood of rural people as well. Sir, cotton को मैं raw material for textile industries के पैराए से हट के देखता हूँ, और इसमें हम देखते हैं, sorry again, हम ये देखते हैं कि तकरीबन कोई 90 से 100 बिलियन रुपीस एवरी ईयर रूरल इकोनॉमी में इंजेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ कॉटन प्रोडक्शन. इसमें प्लांटिंग कॉटन, वीडिंग, होइंग, स्प्रेइंग, पिकिंग, इन सब में जो
Khalid Saab seems to be having internet problems. I think he is dropped. Khalid Saab, खालिद साहब काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक म्यूट हो गया। मैसेज आ रहे हैं। Khalid Saab, ये आपका शायद mic मुझे mute- इन्होंने Khalid Saab बोलिए। जी अच्छा, गुड, अनम्यूट है Sorry, माइक आपका- मेरा। गो हेड जी, गो हेड, बोलिए जी। ओके, हम कह रहा था कि तकरीबन कोई 90 से 100 रुपीस जो है एवरी ईयर इंजेक्ट रूरल। इसके साथ कॉटन सीड एक्सट्रैक्ट होता है, दैट 63% ऑफ आवर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। तो इससे फायरवुड आती है वो 4 से 5 मिलियन टन है। अगर ये कॉटन ना हो तो ये प्रेशर फिर फॉरेस्ट ट्रीज के ऊपर जो है ये आ जाता है, और इसके साथ 3 से 4 मिलियन टन पोल्ट्री और लाइव स्टॉक फीड के हमें मिलते हैं। इसके साथ ही जो शाह सत्तार साहब ने काफी एलेबोरेट किया कॉटन की इम्पोर्टेंस को, और कॉटन के इश्यूज भी बहुत सारे उन्होंने, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहूंगा कि कॉटन और टेक्सटाइल की जो पाकिस्तान की जीडीपी में शेयर है, ये इतना शेयर किसी और मुल्क का नहीं है। अगर आप मिसाल लें, आप इंडिया की मिसाल लें, आप किसी और जो टॉप कंट्रीज हैं उनकी, तो पाकिस्तान की रिलायंस ऑन कॉटन एंड टेक्सटाइल वो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और इसको इस नजर से देखना इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल की वैल्यू एडिशन है, अनफॉर्चुनेटली ये जिस लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ये डिजायर्ड या जो बाकी कंट्रीज जिस लेवल के ऊपर, वो नहीं है। और मेरी नज़र में इसकी दो ही रीजंस हो सकती हैं। एक तो या ये कि दे आर नॉट मेकिंग एनफ प्रॉफिट टू कन्वर्ट इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और या पाकिस्तान में उन तमाम कॉटन जो प्रोड्यूस होती है उसको कन्वर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, या कैपेसिटी इशू है, और या दे आर मेकिंग। कॉटन की दुनिया में जो कल्टीवेटेड वैरायटीज हैं या कल्टीवेटेड स्पीशीज हैं वो आमतौर पे 4 हैं, और पाकिस्तान में से अमेरिकन कॉटन या पीमा कॉटन या गोसिपियम हर्सुटम ये कल्टीवेट करते हैं। इसके अलावा देसी है जो कि मार्जिनल एक मिनिमम एरिया के ऊपर होती है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान 3.2 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर कॉटन काश्त करता आया है इन इट्स पीक, और जो अब रिड्यूस होके 2.3 मिलियन हेक्टेयर में पे आ गया है। अब इस इतने 0.9 मिलियन हेक्टेयर का रिड्यूस होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन भी इफेक्ट हुई है। गो के यील्ड में जो डिक्रीज है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जितना एरिया में डिक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन के बीच में हमें डिक्रीज नजर आता है। और इसकी रीजन जो शायद सत्तार साहब ने भी पहले बताई कि प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जब एक थिन मार्जिन पे होती है तो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है उसको 2 बार सोचना पड़ता है कि उसको फर्टिलाइजर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ग्लोबली 9.3 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है कॉटन की, जो कि तकरीबन कोई 16 बिलियन डॉलर्स के करीब है, जिसमें से पाकिस्तान का शेयर 2.5 बिलियन के बराबर बनता है अगर हम 10 मिलियन बेल पाकिस्तान की प्रोडक्शन कंसिडर करें। मैं मैं कॉटन रिसर्च के ऊपर आना चाहूंगा क्योंकि काफी बात हुई। हाइब्रिड, शाह सत्तार साहब ने भी बात की, और भी हम बात सुनने को मिलती है कि इंडिया हाइब्रिड यूज करता है और पाकिस्तान को भी करना चाहिए। देखिए, हाइब्रिड किसी भी क्रॉप में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही रीजन होती है कि हाइब्रिड विगर कितना है, यानी ओपन पॉलिनेटेड यानी जो क्रॉप हम लगाते हैं इसमें, और हाइब्रिड के जो प्रोडक्शन है
उसके बीच में क्या फर्क है। अब ये मेज में और राइस में तो इनका फर्क सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ह्यूज फर्क है। ओपन पॉलिनेटेड पाकिस्तान फिनोमिना है कि कॉटन हाइब्रिड की बहुत ही मिनिमम है, उसकी जो सीड कास्ट होती है वो उसको जस्टिफाई नहीं करती। इसी वजह से पाकिस्तान हाइब्रिड कॉटन प्रमोट नहीं हो सकी। और अगर आप लेटेस्ट इंडियन गवर्नमेंट की जो अगर रिपोर्ट्स देख, वो भी इसको डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी जो यील्ड्स हैं वो स्टैग्नेंट हो गई हैं 550 किलोग्राम पर हेक्टर के दरमियान। तो वो भी इसको दोबारा ओपन पॉलिनेटेड की तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। कॉटन रिसर्च को मैं 3 हिस्सों में या प्रॉब्ली 4 हिस्सों में मैं तकसीम कर सकता हूँ। सबसे पहले वेराइटल डेवलपमेंट, जिसको आम तौर पे लोग कंसिडर करते हैं कि कॉटन रिसर्च जो है सिर्फ यही वेराइटल डेवलपमेंट है, जबकि ये उन 4 मेजर जो रिसर्च एरियाज हैं उनमें से एक है। इसमें हम देखते हैं कि पोटेंशियल वैरायटी क्या है, इनपुट रिस्पॉन्सिव वैरायटीज आजकल डेवलप हो रही हैं, जबकि हमें नॉन रिस्पॉन्सिव वैरायटीज की तरफ भी सोचना चाहिए, ताकि जो छोटे जमींदार हैं उनके लिए। इसमें जो हमें सबसे जो ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो जर्म प्लाज्म, एक्सेस टू जर्म प्लाज्म है। इनफैक्ट कॉटन एक ऐसी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप है जिसका जर्म प्लाज्म दुनिया में शेयर नहीं होता। आमतौर पे कंट्रीज जो है वो रिलेक्टेंट होती हैं इसका जर्म प्लाज्म शेयर करने में, जबकि बाकी आप देखते हैं जो कमोडिटीज हैं या क्रॉप्स हैं उनके इंटरनेशनल इदारे मौजूद हैं, जिस तरह इरी है राइस के लिए, सीमेंट है मेज और व्हीट के लिए, एक्रिसेट है, और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो डिफरेंट क्रॉप्स के जर्म प्लाज्म शेयर करते हैं, तमाम दुनिया एक दूसरे से करते हैं, लेकिन कॉटन के लिए ऐसा कोई इदारा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पीडिमेंट है हमारी रिसर्च को गेयर अप करने के लिए कि हमारे पास जर्म प्लाज्म के एक्सेस नहीं है। लास्टली हमें एक यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रोजेक्ट के जरिए कोई 5000 के करीब हमें जर्म प्लाज्म मिले। इनफैक्ट वो अपना जर्म प्लाज्म पाकिस्तान में टेस्ट करना चाहते थे अगेंस्ट कॉटन लीफ कर्ल वायरस। तो इस एक रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर जो है हमें कुछ जर्म प्लाज्म नहीं है, जो वेराइटीज का जो पोटेंशियल है वो हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं। जो एक स्टेगनेंसी आप देख रहे हैं 700 और 800 किलोग्राम के दरमियान, वो उसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और फाइबर ट्रेड्स, ये भी ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम हाई यील्डिंग वेराइटीज कर पाते। अगर उसके फाइबर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो हम उसको किसी भी सूरत अप्रूव नहीं करते फॉर जनरल कल्टीवेशन। कॉटन लीफ कर्ल वायरस एक ऐसा इशू है जो कि एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, और ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है इन आवर यील्ड्स एंड वेराइटल डेवलपमेंट। तो ये तो बात की वेराइटल डेवलपमेंट की। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्रॉप इकोनॉमी का है। इसमें हम ये देखते हैं कि क्रॉप को उगाना किस तरह है, उसमें सीड क्वालिटी, प्लांट जियोमेट्री, मैकेनाइजेशन, वाटर, तो पिछले 70 साल से जो हमारी क्रॉप इकोनॉमी है वो लो डेंसिटी बुशी प्लांट के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें हम कोई 1000 पौधे पर एकड़ रखते हैं, और लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है उसमें कोई 3 फुट 2.5 फुट। तो दुनिया में करें वो ममालिक जिनकी एवरेज यील्ड 1000 किलोग्राम से ज्यादा है, 1000 किलोग्राम या इससे ज्यादा, बाय द वे फॉल करता है 700 टू 800 किलोग्राम पर हेक्टर में, और इंडिया जो है वो 550 किलोग्राम पर हेक्टर में फॉल करता है। अब जिन ममालिक की 1000 किलोग्राम से ज्यादा पैदावार है
उनके यहाँ जो क्रॉपिंग जो वो एंटायरली डिफरेंट है। वहां पर हाई डेंसिटी यानी कोई 80,000 से 1 लाख पौधे पर शॉर्ट ड्यूरेशन जो 120 दिन 130 दिन 180 दिन में मैच्योर होती है, वो मैकेनिकल पिकिंग कर सकते हैं। जी खालिद करने साहब, की बहुत जरूरत है और पिछले 2 साल से हम इसके अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें हमें बहुत सक्सेस मिली है। इसमें जब इसकी ड्यूरेशन जब हो जाए 120 दिन हो जाए तो उससे आपके इन यूज कम हो जाता है, जिससे खालिद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। खालिद साहब आपका माइक फिर बंद हो गया मेरा ख्याल। सर खालिद साहब से रिक्वेस्ट है काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दें ताकि आपकी आवाज खालिद क्लियर साहब कैमरा, हाँ कैमरा ऑफ कर दें, कैमरा ऑफ कर दें प्लीज, फिर आवाज आएगी। चलें जी, मेरा ख्याल we've lost Khalid साहब। चलें, I think we substantially heard what he had to say. So let's move on. We've got Mr. Anis Khwaja, an industrialist. Anis साहब, we've heard a lot of things, but I'm still very unclear. Shahid साहब gave us strengths and opportunities, but he didn't give us any weaknesses. तो weaknesses textile की क्या हैं? हमें बताइए textile की। Khalid साहब still trying to talk. Khalid साहब आप हैं? खालिद साहब जी मेरे ख्याल में कोई खालिद साहब से काइंडली कह दें कि अपना कैमरा ऑफ कर। मैं अर्ज कर रहा था कि जो खालिद साहब अपना कैमरा ऑफ कर दें और प्लीज जल्दी से खत्म कर लें, अब आपका 2 मिनट रह गए जी। ओके चले जी जी बोलिए जी। जी मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट क्रॉप एग्रोनॉमी और तीसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो दैट इज इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजीज मैनेजमेंट, जिसमें कॉटन लीफ कर्ल वायरस, व्हाइट फ्लाई एंड पिंक बॉलवर्म आते हैं। और चौथा एरिया पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, पिकिंग, मैकेनाइजेशन एंड प्रीमियम पिकिंग, जिससे हमारी जो डायरेक्टली हमारी क्वालिटी को इफेक्ट करती है। अब जो हम आगे इसमें देख रहे हैं, कमिंग टू वे फॉरवर्ड, खालिद साहब बस 2 मिनट में खत्म कर लें प्लीज, 2 मिनट में खत्म कर लें प्लीज। को फास्ट ट्रैक पे जिससे मैनेजमेंट के एड्रेस हो सकेंगे। अब रिसेंट लोकल इंस्टीट्यूट्स चलें जी, थैंक यू खालिद साहब। आई थिंक कि आपकी आवाज अब नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह जरा आप कैमरा ऑफ रखें, इंटरनेट ठीक कर ले, फिर हम बाद में बात करेंगे। अनीस ख्वाजा साहब प्लीज, कैन आई एंगेज यू प्लीज अनीस साहब? I'm still not very clear what's happening. Yes, the cotton production is not that good, but then what is it with the textile industry? Are you people internationally competitive or not? If not, why not? It's a 70-year-old industry. Why are you guys still not strong enough to stand on your own feet? Please. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. I think Shahid साहब ने बड़ी अच्छी presentation में हमें इसको sum up कर दिया था of what we are looking at and where the problems are. But I'll try to just summarize and answer your question first. खालिद अब्दुल्ला साहब ने theoretically बड़ी अच्छी बातें कर दी हैं कि हमें ये काम करने हैं, ये मसाइल हमें resolve करा सकते हैं चीज़ों को with regards to cotton crop quality. But when we talk about why as textile industry we are not sitting at where we should, there are multiple issues in it. So one of the primary reason why we are at this point today is because of the government policies which have not been in support of how industrialization and exports have to increase.
अगर आप देखें जो हमारे चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स आते हैं एंड डिफरेंट रिजीम्स हमारे आते हैं कंट्री में, दे बेसिकली कम इन विद अ न्यू माइंडसेट ऑल टुगेदर. If you ask me personally, in the last 2 years, we've seen a proper shift where we are being heard and things have started moving in the right direction. But again, the implementation process is very slow. So just going back to Shahid Saab's presentation again, you look at energy pricing. All we ask for is that we need to stay regionally competitive, because if we have to increase our exports, which we are trying for a very long time, we need to stay competitive with the countries we are competing with across and around us. And for that, if we are not regionally competitive, we will never be able to perform. आपने कॉटन वाली बात को थोड़ा सा lightly मेरे हिसाब से ले लिया. I think it needs more weightage, because if we are not getting enough crop within Pakistan, which is going to help us produce the raw material, the goods to be exported around the world, this will be a problem down the road. और आपकी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज आप इंपोर्ट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते कि हर चीज को आप इंपोर्ट करें, एक एडिशनल कॉस्ट आप बेयर करें 5 से 10% की, और फिर आप कहें कि उसी के मुकाबले में यू कम्पीट अगेंस्ट कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका. सो कॉटन इज वेरी क्रिटिकल. एंड आई थिंक जो शाहिद साहब वाली बात है, मैं उसको वाउच करूंगा दैट वी नीड टेक्नोलॉजी टू स्टेप इन. वी नीड हाइब्रिड सीड्स टू कम इन. अगेन थियोरेटिकली बड़ी अच्छी बातें की हैं खालिद साहब ने, बट द बॉटम लाइन इज कि आज तक हम प्रैक्टिकली वी आर नोवेयर. Our institutions have not been able to perform. In spite of the fundings, we have gotten nowhere, and we need to join hands together to make sure that this problem is resolved and cotton is at a point where we are self-sufficient और हमें import ना करने पड़े. There are cottons in the world which will still be imported. Long staple है, contamination free है. So those are things which can also be achieved if we go for the right technology. Another of the points which I really want to highlight here is the fact कि हमारी exports जब बढ़नी है, which is very critical for us, we need to have more value-added products happen here as well. अब value-added products के लिए we go back to the point where the government policies need to be much more friendlier. So ease of doing business की बात आप करें, आप बात करें इसमें policies which encourage you to go for more difficult businesses which are of higher value, जैसे governments के businesses हैं. बांग्लादेश मॉडल को आप देखें तो उसमें this is what they've done. हमारे पास added advantage है कि हमारे पास raw material भी है which will help us curtail the imports, and we can increase our exports as well. So the government has to come in with policies. और इसके ऊपर मैं जो point highlight करना चाहूँगा वो ये है कि एक जबरदस्त टीम ने जिसमें APTMA also was a stakeholder, उसने एक textile policy बनाई है. Now again वो policy बन गई है, but we are now stuck again with the fact कि वो policy implement नहीं हो रही अभी तक. So the implementation part needs to happen on the government side so that the investors, the businessmen, the entrepreneurs are able to grow the industry and themselves to a point where the exports of the country are at a level which justify the investments and done here. Is there any point that you would want to ask further, or I can just carry on with my points? No, please go ahead. Nobody is stopping you. ठीक है. तो इसमें with regards to the policies की हम बात करते हैं, so there are a few things which I would want to bring in here. जैसे एनर्जी की बात की है, so एनर्जी के ऊपर हमें कभी भी विजन नहीं दिया जाता for more than 3 months or a year maximum. So when we talk about setting up an industry or talk about increasing exports, we are looking at a vision of 10 to 15 years. That's why the policy is very critical, and we need to get somewhere on the energy pricing model. हमारे और भी अगर इसी पॉलिसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए, we have more issues to come in as well. So जब man-made fiber के ऊपर आते हैं, the world is shifting to man-made fiber, and we are at a point right now जहाँ पर we are always talking about cotton. So the man-made fiber, उसकी excess within Pakistan, उसके अंदर और producers need to come into Pakistan as well, so that we are able to tap this market and explore this huge untapped market. On the same point, जब policy की बात करते हैं, so SCGs have to play a very important role, because सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप एक massive
big industry growth kar sake. Any industry which has to grow on smaller pockets on the basis of smaller investors and smaller industrial units, जिसको हम SME भी कह सकते हैं. So पाकिस्तान में उसकी ग्रोथ बहुत कम है comparatively, especially when you compare again regionally. और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये आ जाती है कि हमारी SCGs परफॉर्म नहीं कर रही. I am also a part of PIDMEC, मैं board of directors में हूँ. So this is the challenge that we are facing, and we are hoping to get this sorted out कि हमारे SCG Act के मुताबिक हमारी जो industrial states हैं उनको special economic zone का स्टैचर दिया जाए और वहां पर इस किस्म की फैसिलिटीज दिए जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको लेस देन 70 की रैंकिंग पर लाकर people will have the comfort of just going in and starting their businesses, not going into a mode where they have to get a million approvals and try and sort it out. So textile की जो value added growth है उसमें it is critical that these mushroom businesses grow. They come to a point where they are given the comfort to expand and get into businesses. So that is also very critical. मैंने आपसे बात की पहले value added के लिए. So the government needs to come up with a policy also for the reason कि जब हम बात कर रहे हैं value added products की ज़्यादा growth की, तो DLTL जो कि encourage करता है किसी भी producer को कि वो export ज़्यादा करे ताकि उसको साथ साथ ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिले और उसके साथ साथ उसको रिफंड भी दिया जाए, सब्सिडाइज किया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स को और एनकरेज किया जाए. दैट स्कीम हैज बीन पुट असाइड फॉर अ बिट एंड दैट नीड्स टू कम बैक ताकि उसके ऊपर भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम फॉलो कर सकें. हमने गवर्नमेंट के साथ इस साल में काफ़ी कोशिश की कि विद द कोविड सिचुएशन एंड ऑल द अदर सिमिलर इश्यूज जो टर्नओवर टैक्स है वो एक काफ़ी ब्लैंक concern पे है because turnover tax is on your top line while people are suffering right now with the bottom line. So turnover tax के ऊपर हमारा ये suggestion था कि उसको substantially कम किया जाए और उसको बेहतर किया जाए so that people it comes into a limit where people can afford this as well. One of the last things which I would really want to highlight before I close my note, हमें जो एक चीज जिस पे काम होने वाला है बहुत drastically वो है skill development का. और उसके लिए we need to join hands with people like you, with more universities. I see a lot of people from different universities are in this call as well. तो skill development where we know that हमारे पास जो आगे के resource आ रहा है, human resource आ रहा है, they are up to date with what is happening in the world. Being in this business, one of the challenge we face is the mismatch of skills and the requirement of an industry. जो पाकिस्तान की textile industry वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. This was not there in the late 90s and even early 2000s. So I believe that as APTMA, as industrialists, as educationists, as Pakistanis, this is something we need to do. हमारा सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि वी वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, वी वांट टू क्रिएट एक्सपोर्ट्स, टू हैव अ बेटर कंट्री परफॉर्मेंस. तो उसके लिए वी ऑल नीड टू कलेक्टिवली मेक एन एफर्ट इन ऑल दीज पॉइंट्स एंड सी दैट हाउ एंड व्हेन these collaborations can be made and on specific points. This is about it that I wanted to add in. But मैं दोबारा end of the day ये बात दोबारा से कहना चाहूँगा that cotton remains a very vital product for us और हमारी industry के survival के लिए the cotton in Pakistan needs to be at a much better scale और उसके लिए technology को लाना पड़ेगा, better seed को लाना पड़ेगा, agronomy के issues को resolve करना पड़ेगा. Thank you very much. Thank you, Anis sir. Thank you very much. Very kind of you. Amanullah Qasim Saab, Director Qasim Textiles. Would you like to comment on that? मैं तो अभी तक I'm trying to understand what the cotton value chain is. Everybody here is speaking as if it's a command economy and there is one value chain. But I see, for example, that cotton के farmers हैं. What have they got to do with the cotton commissioner? What have they got to do with anything? Why are the farmers not producing for their own benefit? And the same thing goes for the rest of the value chain. तो अब्दुल्ला, ये अमानुल्लाह कासिम साहब आप जरा बोलिए. अमानुल्लाह कासिम साहब, फ्लोर इज योर्स जी. आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, थैंक यू.
सर मैं चेयरमैन एप्टमा हूँ इस वक्त सेंट्रल से, और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आपने मुझे बुलाया और मेरे ओपिनियन सुने। सर कॉटन डेफिनेटली एक जमाने में आपको पता है गोल्ड कहलाते, व्हाइट गोल्ड कहलाता था, एंड कॉटन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पाकिस्तान फ्रॉम द स्टार्ट एंड स्टिल टुडे। हम मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल दूं कि बांग्लादेश का हम एग्जांपल हमेशा देते हैं, तो मैं आज भी बता दूं, मेरा गारमेंट वर्टिकल यूनिट है कि गारमेंट आज हमें अगर एक $6 का पड़ता है तो बांग्लादेश में वो गारमेंट $5.50 का पड़ता है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट फैब्रिक, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। वहाँ 2-3 चीजें बड़ी चीपर है अभी भी, जो है लेबर, इंटरेस्ट रेट और रिबेट्स गवर्नमेंट देती है। तो पहले तो हम कम्पीट कहते हैं ना, हम बांग्लादेश से क्यों नहीं कर सकते, तो ये वजह भी है कुछ। अब आ जाए कॉटन पर। सर कॉटन में हमारी बड़ी मीटिंग हुई थी एप्टमा की और गवर्नमेंट की, इसमें खाजानी साहब थे। हमने गवर्नमेंट को पूरा बताया कि कॉटन सीड का जो प्रॉब्लम हुआ है बहुत गंभीर है। ये परवेज मुशर्रफ के आने से पहले बीटी कॉटन पर सारा हो गया था, लेकिन जब हुकूमत चेंज हुई तो ड्रॉप हो गया, अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक। इसके बाद गवर्नमेंट ने कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं। शुगर कैन लॉबी या माफिया जो भी है, दे आर इंक्रीजिंग शुगर कैन एवरी ईयर, और कॉटन इज कैरिंग। अब फार्मर्स की आपने बात की, तो फार्मर्स को शुगर कैन में ज्यादा पैसे मिलते, सब्सिडीज मिलती होगी डेफिनेटली, तभी कर। लेकिन जो ईल्ड प्रॉब्लम है, अगर ईल्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लें और बेटर सीड ले आए, तो वही जगह में उसको अगर डबल प्रोडक्शन होगी तो फार्मर ऑटोमेटिकली लगाएगा। ये तो बेसिक पॉइंट है ना, कि जब देखे ना वो गरीब लोग हैं, अब पूरी इकोनॉमी उठती है। देखिए जब आपको इकोनॉमी भी उठाना चाहते हैं ना, इट स्टार्ट फ्रॉम द रूट लेवल। अगर फार्मर्स कमाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है गवर्नमेंट को। सर इस साल हमने मोर देन $1.2 billion की इंपोर्ट की है कॉटन। अब ये $1.2 billion अगर इस इकोनॉमी में आ जाते हो, गरीबों के पास आ जाते हो, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। तो ये हम इंपोर्ट करके देखें, हम वर्टिकल यूनिट्स हैं, हमने इंपोर्ट कॉटन की, हमने सस्टेन कर लिया, हमने कंपटीशन में आगे दुनिया से हमने काम कर लिया, लेकिन हमारी मार्जिन चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन हम खड़े हुए। अगर यही $1.2 billion हमें अपनी इकोनॉमी में डालते तो हम सबके लिए बेनिफिशियल होता। हम गवर्नमेंट से ये पूरा पैकेज बनाता। हमारी इमरान खान से 3 घंटे की मीटिंग हुई थी, इसमें सारे स्टेक होल्डर थे, सीड वाले थे, फार्मर्स थे, इंजीनियर्स थे, सब थे। ये पूरा पैकेज बना कि शॉर्ट टर्म एक्ट होगा, लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म में सीड पे ये काम होगा, लॉन्ग टर्म में प्राइवेटाइज सीडिंग होगी और उनको पूरा लेवरेज दिया जाए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी जाए। वो सब तय हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आपको मैं ये जब तक ईल्ड नहीं बढ़ेगी तो फार्मर तो नहीं लगाएगा, और जब तक हमारा फार्मर नहीं कमाएगा हम भी नहीं कमा सकते। तो गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पर ये रूट कॉस्ट कॉटन फार्मर्स हैं, उनको अगर बेनिफिशियल नहीं होगा, वो कॉटन सीड कॉटन नहीं लगाएंगे, तो गवर्नमेंट को सीड अच्छी करनी पड़ेगी। पेस्टिसाइड 700 पेस्टिसाइड इंडिया में कोई 15-20 है, यहाँ 700 कंपनियां चल रही हैं। वो मतलब कोई काम करने के मूड में ही नहीं लग रहा मुझे, साफ मैं कह रहा हूँ। अगर ये इतने पेस्टिसाइड 2 नंबर के आ रहे हैं तो क्या सीड को प्रोटेक्शन आता है। हमने उनसे कहा था कि मॉडर्न फार्मिंग जो होती है वो सिर्फ उनको समझाना होता है सीड को कैसे डालना है, फार्मर्स को आप समझाएं, उससे आपकी 5 से 10% यील्ड बढ़ जाएगी। लेकिन कोई काम हो नहीं रहा। अब ये इतना मैसिव काम है और इतनी बड़ी जगह है कि एप्टमा अकेली नहीं कर सकती। फिर एप्टमा ने इनसे कहा पीसीसी से हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं, हमारे मेंबर्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट ने सारी चीज तय कि हम टॉकिंग अबाउट 4 to 5 months बैक, बट उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो कॉटन है बैकबोन डेफिनेटली, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। बातें बहुत हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब बातें करके चले जाते हैं और कोई इसमें नहीं। अगर आज 1 से 2 साल में इसमें काम नहीं हुआ तो कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, नेट इंपोर्टर हो चुके हैं, हम बिल्कुल इंपोर्टर हो जाएंगे। जहां तक रहा कि कंपोज यूनिट, वर्किटर यूनिट, देखिए सर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ग्रीन सर्टिफिकेशन होती है इंडस्ट्री की। पाकिस्तान में 3 इंडस्ट्री ग्रीन सर्टिफिकेशन, बांग्लादेश में 6 या 7 हो। इसकी वजह है कि जब ग्रीन सर्टिफिकेशन पे जो खर्चा करता है बांग्लादेश गवर्नमेंट, उसके सिर्फ स्टाफ को अपग्रेड कर देती है, ट्रैवलिंग, उनको लेवरेजेस देती है, उनको सर्टिफिकेशन देती है, उनको ऑनर करती है कि भाई ग्रीन सर्टिफिकेशन हमारी मुल्क में आया। हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो गवर्नमेंट अप्रिशिएट। मैं आप एक छोटा एग्जाम्पल दूं कि बांग्लादेश में जब एक्सपोर्टर करता है वो अपने आप को इंश्योर कराता है, तो गवर्नमेंट ने सब मिलकर इंश्योरेंस इस तरह से कराया कि लेस देन 1% इंश्योरेंस उनकी मनी होती है। अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे। इन अदर वर्ड फैक्टराइजिंग भी कहलाती है। वो लेस देन 1% है। हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज गवर्नमेंट नहीं करवा रही।
इनफैक्ट इस वक्त चाइना में भी ये हुआ कि गवर्नमेंट ने सारी पैंडेमिक यानी कोविड-19 का मसला हुआ तो चाइना गवर्नमेंट ने कहा कि जिसने जितना एक्सपोर्ट किया हमें दे दे, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बावजूद ये पैंडेमिक को हम टेक्सटाइल वाले हमारा इस वक्त 6% एक्सपोर्ट डाउन है कंपेयरिंग टू बांग्लादेश विच इज 14%, कंपेयरिंग टू इंडिया विच इज 16% और 17%। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट और हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं और ये इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द सीड। सर हमारे पहले भी 3-4 साल पहले तो लॉ एंड ऑर्डर के बहुत मसले थे कराची में हम टॉकिंग। अभी आप देख लें कराची का ही लास्ट वीक उन्होंने गैस के इलेक्ट्रिक को दे दी, इससे पहले उन्होंने शटडाउन दे दिया हमें 3 दिन का। अगर ये चीजें अगर आप पावर ही मुझे नहीं देंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? कैसे ग्रोथ हो मेरी? फिर आप बोलते हो ग्रोथ नहीं। मैं आपको बांग्लादेश का बता दूं, बांग्लादेश में स्ट्राइक होती है तो कंटेनर निकलता है तो उसको पुलिस कवरेज देकर उसको एम्बुलेंस की तरह निकालते हैं। मतलब एक छोटी छोटी चीजें होती है। गवर्नमेंट डजंट, आई मीन दे हैव टू गिव अ टाइम टू अस कि हमें ये 3 दिन का मेरा शटडाउन कर दिया। मैं के इलेक्ट्रिक, मैं एप्टोमा का चेयरमैन होकर गैस कंपनी वालों से बात की सदस्य से, उन्होंने कहा सर हमारा मसला है। सर आपका मसला है, मैंने तो ऑर्डर लिए हुए, मेरा तो एयर शिपमेंट हो जाए। तो ये एयर शिपमेंट आपको पता है क्या अशर होता है? 1 किलो पर आपको यू हैव टू पे मोर देन 3 टाइम्स मोर देन यू मेक मनी। तो ये जैसे हाजी अनीस ने कहा, शाहिद भाई ने कहा कि हमारे पास 3-4 इशू इलेक्ट्रिसिटी का है। हमारे पास 6.5 सेंट हमने 7.5 सेंट इलेक्ट्रिसिटी और $6.5 गैस का पंजाब में कहा। हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट हमको अनस्टेबल कर देती है कि भाई दोबारा से तो रिव्यू करें। इसके बाद SRO 1125 था जिसमें हमें सेल टैक्स नहीं लगता था और सेल टैक्स हमारा सारा गवर्नमेंट ने 3-3, 4-4 महीने बाद रिफंड मिल रहा है। तो कैश फ्लो है। हाँ, गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज बहुत की है कि हमारे रिफंड जो बैक डेटेड थे, जो पिछली गवर्नमेंट के थे, सेल टैक्स, DTLT, अभी उन्होंने तो सारे गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए, जिसकी वजह से क्योंकि पैंडेमिक के बाद एक क्रंच आया हमें कि हमारी जो 90 डेज की पेमेंट थी फॉरेन में वो 180 डेज तो 210 डेज पर हो गई है। तो इस चीजों के बाद आई थिंक सो पाकिस्तान इज डूइंग वेरी गुड, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डेनिम नाउ। In fact, we are the 3rd in the world in denim quality and value-added product. We are behind, let's say, Turkey and Italy. We are better than China. We are better than Brazil. We are better, much better than in India and Bangladesh. और alhamdulillah, we are exporting roughly about $2 million garment from Pakistan. तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान कोई काम नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी न्यू जनरेशन आ रही है, आपकी यूनिवर्सिटी से लड़के आते हैं and they're doing very good and they are excellent kids, I'm telling you. हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमें इसको प्रॉपर चैनलाइज करना है। एंड आई थिंक सो अगर गवर्नमेंट काम करे तो विद इन नेक्स्ट 2 years वी विल बी। अच्छा देखिए, कॉटन सस्ती पड़ती है तो हमें अगर नफा होता है, प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का सब। अच्छा, गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देनी नहीं पड़ेगी अगर प्रॉफिट हमें अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये DTL और ये रिबेट्स तो गवर्नमेंट कम करता है ऑटोमेटिकली। तो इससे मेरे ख्याल से अगर कॉटन पर ज्यादा टाइम लगा बनिस्बत दूसरी चीजों के तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर टेक्सटाइल एंड फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू अमानुल्लाह साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा जी, हमारा पैनल भी है कॉटन पे ऑफ एक्सपर्ट्स, तो उनको मैं दावत देता हूँ अगर उनमें से कोई बोलना चाहता है। वाजिद राना साहब, मियां महमूद अहमद, शेख मुअज्जम अहमद, बशीर अली मोहम्मद, एनीबडी हियर? अगर हैं तो बता दीजिए, अदरवाइज वील गो टू द फ्लोर। कोई है? बशीर साहब जी, बशीर अली मोहम्मद साहब बोलिए जी प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। I hope you can all hear me. We can hear you. Chalo, thank you so much. Sir, thank you. We are always very happy that you are now taking so much interest and आप वापस ये वेबिनार करके हम सबको, हमारा सबका भी इंटरेस्ट आपने पैदा कर दिया है, and you are doing this on a regular basis and we are really enjoying it because we feel that this is the way forward in the new normal, which you call it. Now, I just will give a few examples. The major example where you are saying is everywhere it comes down to why people are investing in sugar, why they are investing in cement, and why not textiles. No new greenfield projects are coming up, is the profitability. When you don't have energy, you don't have power 3 days a week, 2 days a week. Karachi is 33% of your value-added textiles. तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि लोग इन्वेस्ट करेंगे इस इंडस्ट्री में। जो पुराने हैं वो बेचारे स्ट्रगल करके अपना, अभी हमें फर्नेस ऑयल का भी लगाना पड़ता है यूनिट, हमें
कोल का भी लगाना पड़ता है, हमें गैस का भी लगाना पड़ता है, हमें हर चीज़ की वो रखनी पड़ती है, इतनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होती है। फिर हमें हमारा इन्वायरमेंट का भी अपना लगाना पड़ रहा है, हमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ रहा है, हमें वाटर रिसाइकलिंग। नाउ दिस इज नॉट अ कोर बिजनेस, वी बिकम नाउ लाइक अ मिनी स्टेट। वी आर प्रोड्यूसिंग, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट, हम ट्रांसपोर्ट भी अपना खुद वो कर रहे हैं। वी आर गिविंग आवर ओन ट्रांसपोर्ट, वी आर गिविंग आवर ओन canteens, mosques, schools, everything we are doing for the people. So it's like a state within a state. You have to really get to that size and that effort to really maintain your exports and to maintain your customer base. So these are the things which I think nobody understands or appreciates in Pakistan, that why is no foreign investor coming into Pakistan? आप देख लें, कोई आने के लिए तैयार नहीं है टेक्सटाइल में। पूरी दुनिया में आप देख लें, बांग्लादेश में गया, चाइना में गया, वियतनाम में गया, इंडिया में गया, पाकिस्तान में एक भी नहीं आया, इसलिए कि देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी हो, कॉन्गो भी जाता है, नाइजीरिया भी जाता है, पूरी दुनिया चला जाता है। यहाँ आपने प्रॉफिटेबिलिटी खत्म कर दी टेक्सटाइल की टोटली, बिकॉज द शुगर बैरन्स टुक ओवर, द wheat mafia took over, the other industries took over, and they said, yes, textile is not important, but textile was the only thing which could have kept you out of the IMF program. And Pakistan is the only country which has got the entrepreneurial skills in this, which is far better than anywhere else in the world. So I think we are missing out a golden opportunity even today. We can move very fast, very quickly. आप चेक करें कि we are paying this turnover tax 4 times. आप पहले दे रहे हैं यान के ऊपर, कॉटन के ऊपर दे रहे हैं पैसे। कभी कॉटन के ऊपर होता है 1% टर्नओवर टैक्स दुनिया में, कमोडिटी के ऊपर 1% ले रहे हैं वो हमारे से, एंड वी हैव टू पे, नॉट द कॉटन पीपल। देन व्हेन वी सेल अ यार्न वी हैव टू पे 1%। फिर हम कपड़ा खरीदते हैं उसके ऊपर 1%, फिर हम फिनिश करवाते हैं 1%, फिर गारमेंट पे 1% और 1.5% एवरीवेयर। आप 5-6% अगर आप इतना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दें और उसका रिफंड नहीं दें, दैट इज नॉन रिफंडेबल। How can you allow? I mean, this is, I tell you, we are stuck. That's why we are doing it. There's no exit. And we have to do it. इतना मुश्किल कर दिया इन्होंने, इतने टैक्स लगा रहे हैं, इतनी जगह पे टैक्स लगा रहे हैं। अब 17.5% हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे लगा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा वर्किंग कैपिटल हमारा टाइड अप कर दिया है। एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग एंड वी कीप फाइटिंग विद द गवर्नमेंट एवरी टाइम, एंड वी आर सेइंग ये तो अभी हमें थोड़े बहुत रिफंड्स मिल गए, तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल गया है, लेकिन ये कहते थे हमने दिया आपको पैसे। भाई हमारे आप 10 साल से रोक के बैठे थे, हमारा इंटरेस्ट खा गए 10 साल तक, और अभी हमें कह रहे हैं कि हमने दिया है। हमने तो इतना लॉस किया है, आपने हमें क्या दिया है? तो ये सब मसले हैं हमारे। और दूसरा, द इंडस्ट्री इज फ्रैगमेंटेड। यू सी व्हाट अदर कंट्रीज डिड, दे वर वेरी स्मार्ट, दे न्यू कि टेक्सटाइल को क्लस्टर चाहिए। उन्होंने, नॉर्मली आप क्लस्टर बनाने जाओ 20 साल 30 साल लग जाते हैं, एक हिस्टोरिकल क्लस्टर बनता है। बांग्लादेश ने, वियतनाम ने क्लस्टर्स को परमिशन दे दी, 10-10 साल के टैक्स हॉलीडेज दे दिए, डेवलपर्स ले आए, इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट ने, और हर चीज़ उनको दे दी। वहाँ एनर्जी दे दी, इंपोर्ट अलाउ कर दिया, एक्सपोर्ट के रोड्स बना दिए, सब चीज़, पैकेजिंग इंडस्ट्री लगा दी वहाँ, हर चीज़ की एंसिलरी इंडस्ट्री लगा दी उसको सपोर्ट करने के लिए। तो वो क्लस्टर्स आर्टिफिशियली बना के उनको फास्ट ट्रैक एक्सपोर्ट बढ़ा दिया उन्होंने अपना, वियतनाम ने और बांग्लादेश ने, एंड दैट इज़ वाई दे सक्सीडेड। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा डाविची का स्ट्रक्चर, यहाँ का क्लस्टर्स बन ही नहीं रहे ना कोई, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली पॉलिटिकल विल ही नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी। ये तो 40% का कह रहे हैं सत्तार साहब, मैं कहता हूँ इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है टेक्सटाइल का। आपकी बैंकिंग पूरी टेक्सटाइल पे चल रही है, आपकी लीजिंग पूरी टेक्सटाइल पे चल रही है, आपकी इंश्योरेंस पूरी टेक्सटाइल पे चल रही है, आपकी इतनी सर्विस इंडस्ट्री पूरी, अगर आप उसका GDP में देखें तो इट्स अ वेरी बिग रोल ऑफ टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल को ये बंद कर देंगे तो इनको तो हवा इनकी निकल जाएगी, इनको 1 साल में पता चल जाएगा कि ये 300 रुपये का डॉलर होगा। ये समझ ही नहीं रही है गवर्नमेंट के क्या कितना लॉस हो रहा है इनको। आज भी हमारी सुबह गवर्नमेंट से मीटिंग थी, वही झगड़ा था कि ये हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ा रहे हैं, गैस का रेट बढ़ा रहे हैं। भाई एवरी मंथ हम आपसे लड़ते रहे कि आप रेट, रीजनल रेट्स ने, वी आर हायर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड टुडे। द वर्ल्ड एनर्जी प्राइसेस आर सो लो and still they want to increase it because they said this is a subsidy. It's not a subsidy. They are giving the subsidy to the domestic sector, lifeline consumers. अब उनको दे रहे हैं तो हम कैसे उनको कॉम्पनसेट करें? भाई ये तो बजट से जाना चाहिए ना। हम ये क्रॉस सब्सिडी तो नहीं चल सकती है। ये तो यहाँ पाकिस्तान में तो पूरी क्रॉस सब्सिडी चल रही है पूरा, और यहाँ से वहाँ से बस पैसे पूरे करने। अब आप फ्री करें एनर्जी को। आपका पहले टेलीफोन, आपको पता है 4 साल आपको इंतजार करना पड़ता था, आज आपका इलेक्ट्रिसिटी का यही हाल है। आपको इंडिया का यही हाल था, इंडिया ने फ्री कर दिया। व्हीलिंग अलाउ कर दें, आपका ऑटोमेटिक, ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपके
IPPs का, उसके बैठ के वो negotiate हो जाता है. Everything can be renegotiated. But you will have your electricity rates will start going down. In 3 years' time, you will be very competitive. In 5 years' time, you will be one of the most efficient in the world in energy. But political will has to be there. And then आपको इसका सबसे बड़ा फायदा है जेंडर इक्वालिटी में. The women are the largest 50% वर्कफोर्स आपकी काम नहीं कर रही है अर्बन एरियाज में, और अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका इन्फ्लेशन इतना है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द वुमन इज द मोस्ट एफिशिएंट in textile industry all over the world, and this is where you need transport for them to come, safe transport to come and go back, and plus they are the ones who can really in the value added industry really double your exports very fast. तो ये जेंडर इक्वालिटी के लिए भी हमने इनसे गवर्नमेंट से बात की थी कि आप पहले 2-3 साल इनको सोशल सिक्योरिटी EOBI माफ कर दें शुरू में, कि एटलीस्ट वुमेन को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज हो जाए फॉर द एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉय मोर वुमेन एंड गिव देम द ट्रांसपोर्ट. Because women need safe transport, because that's the main problem. They have to get home at night. They can't be late. And the roads are very congested. The transport system is just not there at all in cities like Karachi. So I think these are the points which are very important. And everything is interconnected in the end with profitability and with the government's political will. These are the two things. If the government decides that we want to get out of the IMF program and we want to just in 3 years double our exports of 4 years, and textile is one of the few things which can really deliver, because China is getting out. The world is now not has decided that we cannot trust China to give everything to us, and 33% is too much. So there is a window of opportunity, and we need to understand this. And I think unless we get out of the IMF program, I don't think we can make our own policies also. They come and make unreasonable demands all the time, and आपका गरीब आदमी कभी भी टेक्सटाइल से ही खड़ा होता है, छोटा होता है. SMEs, जैसे आई एम अ बिग प्लेयर बट आई हैव ओवर 100 SMEs जिससे मैं माल खरीदता हूँ, उसको कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दे रही है, तो उनका माल तो महंगा ही हो रहा है. आई हैव टू फाइनेंस देम, आई हैव टू बाय बैक फ्रॉम देम, आई हैव टू डू एवरीथिंग. बट बिकॉज आई एम सच एन ओल्ड प्लेयर, आई नो हाउ टू डू इट, बट हाउ मेनी पीपल कैन डू ऑन दिस स्केल? तो ये सब मसले. अदरवाइज आप देखें, वी आर एक्सीलेंट. आई एम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू IKEA in the whole world, and IKEA is the largest home textile. So how can you be the best and the largest in the world sitting in Pakistan, in Karachi with all the problems? I have persevered with all the things and have done it. तो ये हो सकता है. You must have a passion for excellence. सब हो सकता है. लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो everybody can do it. And everybody can do it. So thank you, Nazeem Saab, for giving me this opportunity. Which lacks history, which lacks documentation, which lacks understanding. So that's a big, big issue. But we'll take that up later. Meanwhile, let's see, is anybody else from the textile sector willing to talk? We've got lots of people here. Hamid Zaman Saab, would you like to talk? Or, क्या कहते हैं, अंजुम जफर साहब, anybody? Or Muazzam Saab, anybody? Would you like to talk? श्योर. जी हामिद साहब बोलिए. नदीम थैंक यू. बहुत से स्पीकर्स ने बहुत अच्छी बातें की, और जो सबसे बड़ी बात, दो चीजें मेरे जहन में है. एक जो बशीर अली मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में एक गारमेंट यूनिट लगाने जाऊं जिससे मैंने एक्सपोर्ट करनी है, तो ना नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू सेट अप अ यूनिट which will say produce 200 or 300,000 garments. It's amazing. आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आपकी रिटर्न ही नहीं करेगी. तो ये जो अपैरल पार्क्स हैं, there's a lot of noise somewhere. ये जो अपैरल पार्क्स हैं जहां पे आप प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज दें, इनका ये वैलिड पॉइंट ये था कि अगर सारी दुनिया में लोग चाइना से जा रहे हैं इन्वेस्ट करने, बिकॉज चाइना से इन्वेस्टमेंट निकल रही है, पीपल डोंट वांट टू ओनली बैंक ऑन चाइना, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? ये बहुत लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के लिए कि पाकिस्तान में अगर सब कुछ है और पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन भी है, तो क्यों पाकिस्तान लोग नहीं आ रहे? इस वास्ते कि आपकी रेड टेपिज्म इतनी है, आपने कोई प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज नहीं दी. मैं यहां बाहर से पाकिस्तान आऊं तो 6 महीने में मेरा गारमेंट यूनिट तैयार होकर एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे 3 साल तो परमिशन ही लेने में लग जाएंगे. सो एक तो ये बहुत बड़ी
चीज मेरे हिसाब से है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जब तक आप इन्वेस्टमेंट को 4-5-6 गुना नहीं लेके जाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट भी 4-5-6 गुना नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को इंक्रीज करना है। कॉटन इज मे बी ओनली 30% ऑफ द वर्ल्ड टेक्सटाइल ट्रेड। 70% को हम छोड़ रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ कॉटन है, उसको हम बिल्ड अप करें, लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हमें रॉ मटेरियल्स जो पॉलिएस्टर और मैन मेड फाइबर्स के पाकिस्तान आते हैं, जो ड्यूटीज के साथ आते हैं, जो बहुत महंगे पड़ते हैं, जिनको हम री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और उनको यूटिलाइज करने के लिए हमें मशीनरी में इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो एक पॉलिसी वो भी होनी चाहिए जो मैन मेड फाइबर्स को एनकरेज करे। जब तक हम वो नहीं करेंगे, हम एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हम छोटे रहेंगे, कॉटन में चाहे बड़े हो जाए। बट वी हैव टू रियलाइज दैट 70% ऑफ वर्ल्ड टेक्सटाइल ट्रेड इज नॉट कॉटन एनीमोर। तो आई डोंट वांट टू गो ऑन रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स जो और लोगों ने कहे, शायद सतार साहब ने, ख्वाजा अनीस साहब ने, बशीर अली मोहम्मद साहब ने, सब ने अच्छी बातें की, लेकिन ये दो चीजें मेरे हिसाब से बहुत क्रिटिकल हैं। अगर हमने स्पीड से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हम डबल कर सकते हैं एक्सपोर्ट इन 3-4 years, कोई मुश्किल नहीं है। हम 3 times कर सकते हैं इन 5-6 years, वो भी मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड के वी हैव द पॉलिसीज टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। और एक और चीज थी टेक्निकल स्किल्स, लेकिन वो भी हो जाएगा, और आप खवातीन को भी इस चीज में डाल लेंगे लाइक वर्ल्ड ओवर। तो मुश्किल नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है। वी कैन गेट आउट ऑफ दिस डेट ट्रैप, वी कैन गेट आउट ऑफ IMF conditionalities, we can do it, inshallah. Thank you. Very nice. Thank you. Thank you, Ahmed Zaman Sahab. Anybody else, Ji? Otherwise, I'll turn to the floor. अगर कोई टेक्सटाइल मौजम साहब, anybody else? नहीं? Okay. Yeah, Then this is, let's Ji, go ahead. positives Ji, go ahead. Ji. जी, मैं मौजम बात कर रहा हूँ. I would like to जी, मौजम साहब. emphasize on the quality of the seeds. The points raised हुए in terms of the productivity, in terms of the quality of the crop as well. हम लोग बात कर रहे थे, इंडिया से कंपेयर कर रहे थे कि ये हाइब्रिड वर्सेस वेराइटल जो है उसमें पोटेंशियल नहीं है. ऐसा नहीं है. Our varieties are well acclimatized to the local conditions as well. The challenge is the purity and the germination of the seed basically. अगर हम इसी के क्वालिटी को कंट्रोल कर लें, मैनेज कर लें, so that we can have the desired number of plants. अभी हमारी यील्ड्स कम क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो हम लोग कभी सीड्स लगाते हैं उसमें जेनेटिक प्योरिटी नहीं, इसकी वजह से जो है हमारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्लांट्स की पूरी नहीं होती, which ended up in the low yields compared to the world. So अगर हम इसी को मैनेज कर लें, on top of that जो हमारी बात हो रही थी कि जी बीजी टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने अडॉप्ट करी उसकी वजह से they have improved their productivity. It's true कि हमारी जो old technology है it needs to be upgraded. ये 20 years back हमारी टेक्नोलॉजी आई थी and which was brought unchecked and illegally. However, over the years, over the time, it has not been monitored in terms of its quality, in terms of the gene presence, और उसकी performance जो है वो deteriorate होती रही over the years. Now we need to really upgrade that because जो आपको stress नजर आता है environment climatic changes की वजह से, it can sustain the crop as well. So seed की quality and purity को improvise करें, seed technology को upgrade करें, and the third thing which is very very important जो कि हमारे breeders को focus करना चाहिए is on the fiber characteristics. As of now, I tell you, जितने हमारे cotton breeders हैं जो seed develop कर रहे हैं, they are all mainly focusing on enhancing the yield. And why is that? Because farmers are being paid by weight. So हमारा ये भी focus होना चाहिए है कि we should not only be producing cotton, we should be producing good quality cotton. हमारा अगर ultimate ambition एक हो जाए कि जी we should be producing exportable bales, that will resolve all the challenges. Hopefully that will add up to increase in the productivity and enhance the profitability of the farmers as well. क्योंकि अगर आप सिर्फ cotton produce कर लेंगे, length या quantity इसकी बढ़ा देंगे, that is not going to really help. एक yield तो उसको मिलेगी, but until and unless you add up that
you bring that consciousness of increasing the quality, that can really add value to the textile sector as well. And the textile sector can later on participate in those markets, high value markets, which अभी जहाँ पे हम लोग अभी participate नहीं कर रहे हैं. So that can really increase and enhance our share and our ROI as well. So these are the submissions from my side. Thank you very much. Thank you, Ji. Let me bring in Professor Kausar Abdullah. Kausar Abdullah साहब member planning commission में well known agricultural scholar हैं. Professor साहब मेरा सिर्फ आपका एक छोटा सा सवाल है. मुझे ये बताइए, ये सब बातें कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं कि सारी हुकूमत का रोल है. क्या फार्मर प्रॉफिट नहीं बनाना चाहता? वो क्वालिटी कॉन्शियस क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं करता कोशिश अच्छा सीड लेने की? why is a farmer stupid? Is a market stupid? ये कॉटन कमेटी वगैरह, प्रोफेसर साहब जरा थोड़ा सा रोशनी डालें इस चीज पे. शुक्रिया तदीमुल हक साहब. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर. और ये सब बातें हम हमें सुनते रहते हैं. यू नो एप्टमा की बहुत अच्छी बातें थी एंड आई एग्री विद ऑल ऑफ देम. और आपका जो सवाल है, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि आपके इस सारी गैदरिंग में कोई फार्मिंग कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. जी, तो ये फार्मर्स तो ऑब्वियसली चाहते हैं कि उनको भी नफा मिले, उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी में उनका हिस्सा हो, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ही ऐसे एक एप्टमा एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, इस तरह की कोई फार्मर्स की उस तरह की ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं है. चले इस बात को मैं ज़्यादा नहीं छेड़ता. मैं आपको चंद एक बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब ये हमारा डायलेमा क्या है. उसी सबसे पहले ये सारी ये जो बिजनेस है, इट इज़ ऑल्सो मैनेज्ड बाय सर्टन रेगुलेटरी बॉडीज और एक्ट्स. यू सी, यू नो, उसमें 2-3 एक्ट्स हैं जो कि हमने वर्चुअली कोई 10-15 साल की एफर्ट्स के बाद वो बने हैं. उसी ये उसमें एक तो बायो सेफ्टी गाइडलाइंस है, जिसकी वजह से सारी ट्रांसजेनिक जो वेराइटीज़ हैं वो पाकिस्तान में आ सकती हैं. दूसरा है पाकिस्तान सीड एक्ट है, और चौथा है, तीसरा है पाकिस्तान प्लांट ब्रीडर्स राइट एक्ट. यू सी, ये तीनों एक्ट्स अब अल्लाह के फजल से असम्बली से पिछले कोई 1 साल में पास हो चुके हैं. लेकिन अब हमारी ब्यूरोक्रेसी का कमाल देखें, और खालिद अब्दुल्ला इधर बहुत तम तराक से बैठे हुए हैं. उनको चाहिए कि साहब इन सारे एक्ट्स के रूल्स ऑफ बिजनेस तो बनाएं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन तो हो. और ये बात आई वाज अमेज्ड कि फ़खर इमाम साहब ने अपनी असम्बली तकरीर में बड़े धूमधाम से ये बातें कही, और ये एक्चुअली उन्होंने ये कंप्लेंट की कि ये एक्ट बन गए हैं, उनका वो रूल्स नहीं अभी तक बन पाए. ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये 2-3 घंटों का काम है. और अगर हमारे ये नौकरशाही के लोग अगर थोड़ी सी उनमें थोड़ी सी पैशन हो, कमिटमेंट हो, तो दे कैन इजीली डू इट. यू सी, दूसरी बात, अब इसमें सारी चेन में जो शुरू होता है, जैसे मुअज्जम साहब ने कहा, इज द सीड. हमारा सीड जब तक सर्टिफाइड सीड फार्मर्स तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम कोई अपनी पैदावार में इजाफे की बात नहीं कर सकते इसे. और ये मैं आपको एक अश्योरिटी देता हूँ कि हमारे साइंटिस्ट हजरात बहुत काम कर रहे हैं. ये दे आर नॉट ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द यील्ड, दे आर वेरी मच कंसंट्रेटिंग ऑन द फाइबर लेंथ एज वेल. यू सी, यू नो, और बहुत सी वैरायटीज हैं क्योंकि उनकी फाइबर लेंथ ज़्यादा है. उसमें मैं बहुत मैं एप्टमा के हजरात से थोड़ी सी माजरत के साथ मैं इनके लोगों के साथ पिछले 15 साल से मीटिंगें इनके साथ बहुत होती रही हैं. इनके साथ एक ज़माने में क्लीन कॉटन का बहुत था कि सब हमें क्लीन कॉटन मिलनी चाहिए. वो बहुत मैनेज करके, बहुत ऑर्गेनाइज करके क्लीन कॉटन की सारी तंजीम बनाई, और ये था कि एप्टमा वाले फार्मर्स को प्रीमियम देंगे. यू सी, लेकिन somehow that did not happen. You see, you know, so ये बातें भी हैं कि इससे कि एक डेफिसिट इन 2 सेक्टर्स में आता है. यू सी, तो ये इसलिए एप्टमा को थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि ये फार्मर्स की जब तक एक हेल्प नहीं होएगी, उस वक्त तक उनकी भी हेल्प नहीं हो पाएगी. दूसरी बात, शुरू से कहते आ रहे हैं जी कि साहब
we must have a cotton commodity board, you see, ताकि कि जो अगर इसकी प्राइस में ऊंच नीच हो तो that board should enter and stabilize the prices, you see. बट कॉटन कमेटी नहीं है हमारी, कॉटन कमेटी नहीं है अब्दुल्ला साहब? नहीं है, नहीं, that is cotton commodity board, you see, जिसके पास पैसे होंगे और वो मार्केट में अपने एंटर हो सकेगी, you see, that has not been done. और बहुत ये उस जमाने में कौसर साहब, if you would allow, I would just want to update here कि पिछले एक साल से रज़ाक दाऊद साहब की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी है जिसका काम ही यही है कि वो प्राइस को रिव्यू करती रहती है every 15 days and decides if any kind of government support in any way is needed or not. Just to update, ये पिछले साल से चल रहा है. If that's happening, you see, you know, otherwise तो फिर कॉटन की सपोर्ट प्राइस ही नहीं आज तक बनी, तो वो आपने रिव्यू क्या उन्होंने करना है, you know. तो ये सारी बातें, anyway, ये बहुत सारी बातें, ये इतने सारे वो हमारे MNCs यहाँ पे आई ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के ये इसके ये, लेकिन somehow there was no agreement between the government and these bodies, you see. तो ये हमारे गवर्नेंस का बहुत इसमें हिस्सा है, और ये जो हम जेन्युइनली कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नेंस ठीक हो जाए तो बहुत से मामला हल हो पाएंगे, you see. Thank you for the time being, you see. नहीं, very very good. Ijaz Khokhar साहब जी, you wanted to say something, Ijaz Khokhar साहब? It is a mute. Okay. I represent Pakistan Ready-Made Garment Association जी, जो कि इस वक्त वोवन गारमेंट्स को डील करती है. सारी मैं बातें सुनी, कॉटन पे भी बहुत अच्छी बशीर अली मोहम्मद साहब ने बड़ा ओवरऑल आपको पिक्चर दिखाई. मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि कॉटन में तो हम क्लेम करते हैं कि वी आर थर्ड और फोर्थ इन द वर्ल्ड, लेकिन ये है कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ रही. द रीजन कि उसके लिए गारमेंट्स की अगर मैं बात करूं, हमारी बास्केट बहुत छोटी है, जैसे हम सब ने भी बात की. असल पे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी कि जब हमारे पास वैरायटी ऑफ फैब्रिक होंगे, जो कि इस वक्त वर्ल्ड डिमांड है. टेक्निकल फैब्रिक पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी नहीं है. फंक्शनल फैब्रिक जो कि इस वक्त स्पोर्ट्स वेयर की बिग डिमांड है, कैजुअल वेयर में भी, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है. हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने वो जो अचीवमेंट करनी थी, जो लेटेस्ट हमें G3, G4 टाइप के मटेरियल देने थे टू ग्रैब द मैक्सिमम शेयर ऑफ द वैल्यू एडेड शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट, वो हम नहीं कर सके. हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है, डेनिम है, होम टेक्सटाइल है, टॉवल है, वर्कवेयर है, व्हाट एल्स इज, या होम टेक्सटाइल की बात करें, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट. हमें जरूरत है कि अपने गारमेंट बास्केट बड़ी करें. उसके लिए वी रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट को, काफी दफा हमने की है कि जो मटेरियल पाकिस्तान में नहीं बन रहे, वो डिमांड है इस वक्त बाहर की, वो हमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए. जब तक कि वो लोकल इंडस्ट्री वो मटेरियल डेवलप नहीं कर पाती, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएंगे. इस वक्त जो चार्ज स्कीम है टेम्परेरी इंपोर्ट की फॉर एक्सपोर्ट, उसमें जो पाकिस्तान गारमेंट्स की 90% स्ट्रेंथ है वो फॉल नहीं करती, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती. इतनी उसमें फॉर्मेलिटीज हैं कि इस वक्त जो है री एक्सपोर्ट के लिए जो चार पॉलिसीज है, उसमें मेरे ख्याल हार्डली अगर पाकिस्तान की फिगर ली जाए एक्सपोर्टर की, तो 5 to 7% से जो टोटल एक्सपोर्ट नंबर ऑफ एक्सपोर्टर हैं, उससे ज्यादा फैसिलिटेट नहीं हो रहे. तो जब तक आप 93% जो आपकी बाकी की स्ट्रेंथ है जो इस पे रोल नहीं प्ले कर रही, जब तक आप उसको ग्राउंड में नहीं लाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती. ये एक चीज है. और दूसरा ये है कि टेक्सटाइल पूरे चेन को एक स्ट्रेटजी, एक क्या कहते हैं मोडालिटी सेट करनी होगी कि हर फ्रॉम ग्रोथ से लेके फिनिश गारमेंट तक हर जो चेन है वो फेयर प्ले पे खेले. हमारे यहाँ कार्टलाइजेशन जो है वो भी एक कर्व है कि जिसकी वजह से वैल्यू एडेड सेक्टर मार खाता है. सबसे ज्यादा जो बर्डन है, जैसे बशीर अली मोहम्मद साहब ने कहा
कि वो जो विदहोल्डिंग टैक्स है, सबसे ज्यादा बर्डन तो गारमेंट को है, और जितना भी प्रेशर गारमेंट पे आएगा इस वक्त जो पोस्ट का मुखर साहब, कार्टलाइजेशन कौन सी है? जरा कार्टलाइजेशन बता दें, कार्टलाइजेशन कौन सी है? कार्टलाइजेशन ये है कि जब कॉटन अगर शॉर्ट होती है तो एकदम से प्राइस बढ़ जाती है, वेयर एज के गारमेंट एक्सपोर्टर ने साल की प्राइस फ्लोट की होती है, कॉटन की बढ़ती है तो यार्न की बढ़ जाती है। ये जो चीजें हैं हमारी सारी कैलकुलेशन को जीरो कर देती हैं, हम लॉस पे जाते हैं, हम अब बिजनेस नहीं कर सकते, कंपेटिटिव नहीं रहते, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वी लूज द बिजनेस। तो ये चीजें भी हमें आपस में फेयर प्ले का एक मैकेनिज्म जो है उस पे सारे चेन को एक पेज पे आना होगा। तो ये चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी रोल हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोल हैं जो हमारी इंडस्ट्री के हैं। हमें आपस में एक पॉलिसी बनानी होगी कि देखे ना, हर सेक्टर को जायज प्रॉफिट मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ग्रो मारा जाए या वीवर मारा जाए या स्पिनर, जो भी है, अगर हर बंदा फेयर प्रॉफिट ले तो आई एंश्योर यू कि हमारी गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, जो इस वक्त $6 बिलियन पे अटकी हुई है। वी कैन इजीली ग्रो। आई मीन, एक तो हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, दूसरा हमारी म्यूचुअल पॉलिसी अगर दुरुस्त हो जाए, तो जैसे हमद साहब ने भी कहा, आई एश्योर यू कि हम विद इन 2-3 इयर्स इसको कम से कम 50% बढ़ा सकते हैं, और विद इन 5 ईयर हम इसको डबल कर सकते हैं। जहां रहा टेक्निकली वैल्यू एडिशन का, हमारी फैक्ट्रियां सर इस वक्त फुली इक्विप्ड हैं, बेटर देन चाइना, बेटर देन वियतनाम, बेटर देन टर्की, हर किस्म की लेटेस्ट मशीनरी से इक्विप्ड है। हमें बायर जो है जब विजिट करता है तो ऐसे नहीं बिजनेस मिलता, वो फैक्ट्री विजिट करता है, आपकी प्रोडक्ट देखता है। वैल्यू एडिशन में आई डोंट एग्री कि हमारी वैल्यू एडिशन जो है किसी सूरत किसी से भी कम है। वी आर फुली इक्विप्ड, वी आर रेडी। हमें सिर्फ चाहिए रॉ मटेरियल, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और शॉर्ट टर्म भी हो, लॉन्ग टर्म भी हो। टेक्निकल जो HR है उसमें वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, कोई मसला नहीं है। हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं ब्रिगमिया के, वी आर रनिंग 2 इंस्टीट्यूट जिसपे हम फीमेल को मेल को ट्रेनिंग दे रहे हैं। शॉर्ट कोर्सेज के बाद दे गो डायरेक्ट ऑन जॉब। इस वजह से कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि रॉ मटेरियल को और लोकल जो बैकअप इंडस्ट्री है उसको करना है, और लास्टली से हमें अपना सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करना है लाइक इंडिया। हमारा पाकिस्तान का सप्लाई चेन कंप्लीट नहीं है। हमारा जो मेजर वैल्यू एडिशन होती है वो डाइंग की कॉस्ट होती है, डाइंग केमिकल। वो डाइंग केमिकल इंडिया बना रहा है, पाकिस्तान में नहीं बन रहे हैं, उसकी मेजर इनपुट कॉस्ट होती है आपकी वैल्यू एडिशन में। तो हमें अपना सप्लाई चेन जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि हमें सप्लाई चेन को बिल्डअप करें। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड पॉइंट्स जी, वेरी गुड पॉइंट्स। आई थिंक आई एग्री विद यू एंटायरली। इसीलिए हम ये वेबिनार कर रहे हैं। हमारे वेबिनार करने का मकसद ही ये है कि जैसे दुनिया कहती है कि वैल्यू चेन, सप्लाई चेन्स कंप्लीट हो, वो आपस में मिल के काम करें। हुकूमत एक पॉलिसी ऐसी बनाए जिसको चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, जिसको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं अभी देख रहा था, मैं गूगल कर रहा था इंडिया की टेक्सटाइल पॉलिसी, बांग्लादेश की, चाइना की। मैं देख रहा हूँ कि चाइना की टेक्सटाइल पॉलिसी कोई नहीं, इंडिया की मेरा ख्याल एक थी, बांग्लादेश की भी कोई नहीं। एक पॉलिसी बनती है उसको कायम रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आगे चलता हूँ। यूसुफ साहब, यूसुफ साहब। जी सर। जी जी, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर। मेरा ये सवाल है कि इसमें टेक्सटाइल वैल्यू चेन में द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर इज जिनिंग सेक्टर। सर आपने आपको इंट्रोड्यूस भी करा दें यूसुफ साहब, ताकि पता चल जाए सबको। सर मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ जफर है, आपसे मुलाकात हुई है। मैं जब PRC का चेयरमैन था एंड यू वर राइटिंग द ब्रिटिश काउंसिल पॉलिसी एंड एजुकेशन फॉर एचईसी। तो उससे पहले मैं डॉक्टर कौसर के अंडर काम करता रहा हूँ फॉर 20 years ऑन कॉटन रिसर्च। तो सर ये अवर जो समीडा की रिपोर्ट भी है और जो फ्रेंच एक्सपर्ट्स ने भी रिपोर्ट दी है कि हमारा टेक्सटाइल वैल्यू चेन में द वीकेस्ट लिंक इज जिनिंग सेक्टर, बिकॉज इट्स टू वे प्लेयर। इट इज reacting with the farmer, buying the cotton from them and supplying to textile. तो आज कोई उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव इस टेक्सटाइल वैल्यू चेन में द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट द वीकेस्ट लिंक
वो is a very important absence in discussing textile value chain. ये सारी खराबी उसकी वजह से है. रीजन बीइंग कि हमारी सारी जो टेक्सटाइल जो कॉटन की ट्रेड है इज बेस्ड ऑन वेट, नॉट बेस्ड ऑन क्वालिटी लाइक शुगर केन. तो एक तो ये मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज करना था. दूसरे जो कहा गया वेरी टू नाइस डॉक्यूमेंट्स, टेक्सटाइल विजन 2010 in Musharraf era was prepared by involving all stakeholders, APTMA, ginning sector, farmers, traders, exporters. और उसके बाद कॉटन विजन 2015 बनी. 16 पॉइंट्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट अ सिंगल पॉइंट वाज इम्प्लीमेंटेड. तो ये जीओपी के साइड के ऊपर जो पॉलिसी विजन का जो सीरियस इशू है, जिसे डॉक्टर कौसन ने भी मेंशन किया है कि टग ऑफ वॉर चलती रही बिटवीन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एंड द कॉटन मिनिस्ट्री, उसको किसी स्टेक होल्डर ने डिस्कस नहीं किया इसमें पूरे में कि भाई इतना नाइस डॉक्यूमेंट जो बनाया गया था जिसमें प्रॉमिस था कि 2015 में हम 20 मिलियन बेल्स बनाएंगे और क्वालिटी के ऊपर सारी ट्रेडिंग होगी, उसमें बार कोड होगा लाइक यूएस, और उसके लिए सारा जिनिंग इंस्टीट्यूट बनना था मुल्तान में, वो सारे काम हुए थे. सर ये एप्टमा से ये पूछना पड़ेगा कि इन्होंने टेक ओवर भी किया पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी को और उसके इदारों को. उसके बाद में फिर ये लिटिगेशन में चले गए और कॉटन सेस जो बड़ा मामूली सी था वो भी इन लोगों ने स्टे ऑर्डर लिया फ्रॉम पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट वगैरह से. जो रज़ाक दाऊद साहब की मीटिंग उतरी उसमें मैं भी शामिल होता रहा हूँ. तो अभी तक सर ये मुख्तलिफ हीलों बहानों से बड़ी मीगर मनी दे रहे हैं. उससे जो हमारे टूटे फूटे इदारे हैं सकरंड में और मुल्तान में, वो भी एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं. तो ये कॉटन रिसर्च को गवर्नमेंट को सरताज अजीज ने किया था, जाने तक पॉलिसी दी थी कि 5 बिलियन का एक फंड देना चाहते थे, लेकिन ये पीछे की गवर्नमेंट आई उसने वो भी ख़त्म कर दिया कि आप गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिस तरह राइस में ली हुई है, जिस तरह वीट में ली हुई है. तो वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन एप्टमा फॉर दीज थिंग्स. और हम खुद जो है जिस तरह वीट और राइस में ग्रो कर रहे हैं, 8 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं राइस में. और सर ये इन्होंने खुद एप्टमा ने जो नंबर 3 या 4 स्लाइड दिखाई है कि इसी इरा में विद द सेम वैरायटी, विद द सेम एग्रोनॉमी, सेम वाटर, सिंध में 150% एरिया बढ़ा है और 56% प्रोडक्शन बढ़ी है इसी इरा में, जबकि पंजाब में 57% डाउन गई है. तो ये बताएंगे कि भाई इन्हीं वैरायटियों से, इन्हीं लोगों से, इन्हीं इदारों से जो वैरायटियाँ निकली हैं, वो सिंध में 150% एरिया क्यों बढ़ा पिछले 10 सालों में और 56% प्रोडक्शन क्यों बढ़ी. ये मेरे साथ चांस गुजारिशात हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. बहुत शुक्रिया जी, वेरी नाइस ऑफ यू. थैंक यू सर, थैंक यू. Sir, I can give answers to the questions raised by. एक मिनट, we'll come to you. मुबारक अली साहब, anything? मुबारक अली साहब बोल रहे थे कि is another famous agricultural person with well-known credentials. मुबारक अली साहब, are you there? सुन सकते हैं? हेलो जी मुबारक अली. हाँ जी जी, can hear you. बोलिए. कहा क्या कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट क्या करती है टेक्सटाइल के लिए, चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है, या इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस मुल्कों में फार्मर्स के लिए क्या कर रही है, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है रिसर्च पे कितना खर्च कर रही है. आप देखिए हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बाहर से 25% हायर प्राइस पे कॉटन लेना गवारा कर लेता है, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान के फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की कोई कभी कोशिश नहीं की. मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अहम मसला यही है कि हमने कॉटन प्रोडक्शन में, कॉटन की प्रोसेसिंग में और जिनिंग में, इवन जिनिंग के अंदर भी इनके जिनर्स जो हैं ये ओल्ड स्टाइल जिनर्स हैं जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है और जो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इनएफिशिएंट है. सो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द होल वैल्यू चेन में कोई सपोर्ट मौजूद हो. और इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है एप्टमा ने प्ले करना है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, जो कि वो नहीं कर रहे. वो गवारा कर लेते हैं कि बाहर से 25% महंगी कॉटन ले लें rather than supporting their own farmers by providing technological support. Okay, very good, very good. Thank you, thank you. Sarah Nazamani, last question. Assalamu alaikum, sir. My name is Sarah Nazamani and I'm a research scholar at Applied Economics Research Center. Sir, I'm just going to talk about a farmer's perspective over here. Since we're talking about making business easier or more profitable for those who are in agriculture,
basically farmer, I would like to ask that are we taking any useful steps for agriculture credit in the country? A 2008 study of agriculture credit shows that 61% farmers feel that loan processes are too lengthy, 77% feel interest rate is too high, 45% complain about non-cooperation of bank staff, and 71% say that a loan is not provided on time. So basically, they are facing too many problems when it comes to credit. So how do we expect a sector which employs more than 40% of country's population when they don't have access to easy credit? How do we solve credit issues of a farmer, sir? Thank you. Thank you very much, Ji. Very good. Acha ji, I'll turn to the speakers now again to respond. But very quickly, I want to put one or two things on the table. One is, I think we as a people look far too much towards the government to solve our problems. When we know the government is actually accentuating our problems, we look to the government to solve our problems. और इसमें बड़े-बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं, हम सब, मतलब हमारे दोस्त, हम लोग सब, कि जी हम लोग कोशिश करते हैं कि हुकूमत हमारे लिए सब कुछ करके दे. हम अपनी इंडस्ट्री, अपनी वैल्यू चेन को खुद नहीं बनाते, हम अपनी चीज़ें खुद, फॉर एग्जांपल 2-3 चीज़ें यहाँ कही गई हैं जिसके ऊपर मैं सोच रहा था. एक तो कार्टेलाइजेशन की बात की गई, दूसरी बात की गई कि हम इकट्ठे काम नहीं कर सकते. सब ने कहा कि फार्मर्स को नहीं करते सपोर्ट, कुछ ने कहा वो जिनस को नहीं सपोर्ट करते, किसी ने कुछ. आई हैव सीन दिस बिफोर टू कि सियालकोट में भी जब मैं गया था तो इंडस्ट्री आपस में काम करने को तैयार नहीं थी. हमने अलहदा एजेंसीज बना ली हैं, बट वी डोंट टॉक टू ईच अदर. The home ready-made garment is not talking to Aptoma is not talking to Jinnahs are not. So I think that's also something, you can correct me, but that's a feeling that I get from the outside. The second thing is there's far too much effort, ye bhi Sara ne bhi baat ki, on the banking sector. Interest rate, I don't know why the textile sector relies on the interest rate and why you are interest rate sensitive. Interest rate, to aapko to ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए interest rate से, because quite frankly, there should be no mechanism. You need loans to store cotton. I think we need to get beyond that. This is 1930s model. We need to have a forward market. Why are you not establishing a forward market? Why is there? दूसरी चीज जो मैंने कहीं नहीं बात सुनी वो इस सारे मौजू में markets की बात. For example, seed market क्यों नहीं है? For example, why are the Aptoma people not investing in the seed market and selling seed to the farmer? Why is there no proper cotton market? Support price की क्या जरूरत है? अच्छा नहीं है, बल्कि होनी भी नहीं चाहिए. Why don't we have a market for Jinnah's market क्यों नहीं है? Why are these things not listed on some exchange? Cotton का सट्टा तो जब मैं बच्चा था तब मैं सुनता था कि cotton का सट्टा होता है, which is a forward market, which is a very good market. Why is it that we don't have even today a market mechanism going on and we are looking towards the government? तीसरी चीज, आप लोग सब कहते हैं कि बिजली का बड़ा, कितना परसेंट कॉस्ट है आपकी? बिजली का कॉस्ट कितने परसेंट है आपके इनपुट्स का? क्या इज बिजली द मेकर और ब्रेकर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल चेन, और इज इट something that you can cover in your margins? I think these are deep questions, and the reason that we take up this issue at the PID, we are inshallah going to try and help you, work with you, try and develop a research on each of these subjects. I think what is lacking is research that drives the debate in the whole value chain. That's the role I think people like us can provide, and we will join up with the agricultural research centers to try and provide that kind of input or that support to you people. But please try and help us work through this debate and tell us what your reactions to this are. So can we start with Bashir Ali Muhammad Sahab and then go down to whoever wants to speak? Bashir Sahab hai? I think he's probably no. Bashir Sahab, kindly unmute yourself. Unmute kar le Bashir Sahab. Bashir Sahab, unmute yourself. Is it okay now? Can everybody hear me? We can hear you. Ji, go ahead. Thank you, Nadeem Saab. Always a pleasure to be with you. And I think you raised the right questions. We have the commodity exchange where we can buy and sell gold. We can buy and sell any materials. But why can't we do cotton? I mean, I fail to understand that. I think we should be doing everything there. Seed, cotton, commodity exchange. India में तो privately owned हो गई हैं अभी commodity exchanges. इतनी बढ़ गई हैं. So I think this is the way, like as I said, energy also. आप इसको wheeling कर दें, free कर दें, buy and sell करें. Everybody should be allowed. This is the only way. We have to deregulate every market. Like you are saying, why should we depend on the government? जैसे हमने फिर अपना effluent treatment plant खुद लगा लिया, हम तंग आ गए. हमने कहा ठीक, हम अपने customer को तो हमें satisfy करना ही. We have to be a green company, otherwise they won't buy from us.
So you have to solve the problem yourself in the end. So I think this is the way forward. But there are certain times where certain things that without government, like energy, we can't do it on that scale. We have solved it ourselves by putting our own turbines and our own generators. But the SMEs are the real engine of growth. एंड उसको अगर हमें रियली पाकिस्तान को रियली ग्रो करना है तो एसएमईज ग्रो करेंगे. हम नहीं कर सकते इतने. हम क्या 24 घंटे काम करेंगे? स्टिल नॉट इनफ. The SMEs, that family business is the real business which can really take the government to the, and uske liye ye energy and all these commodity exchanges and all and safety nets are the most important things. And energy price is very high. In certain items it's 40%, in 50% of the total cost. Like in the processing industry, it's 50% of your cost is energy, and which is the value addition industry for dyes, when you are dyeing, printing, everything. Steam is so important there. So all these things, that's why we needed the clusters, कि वहाँ आपको सब चीज मिल जाए, plug and play मिल जाए. So I think in certain parts, I think you hit on most of the things. You have the answers. As we all said, यहाँ implementation capacity में बहुत time लग रहा है और बहुत slow जा रही है. I think it's like when Mr. Bhutto came, okay, whatever he did right or wrong, he nationalized. यहाँ आपको ये सब काम कर देने, बाद में सोचना है. I mean, आप सोचने जाओगे कुछ नहीं होगा. आपको बस एक, हमने हर गवर्नमेंट आती है, हम कहते हैं 90 डेज में कर लो, फिर हम देखा जाएगा. वो करते नहीं है, बस वो फिर लोग घेर लेते हैं उनको और वेस्टेड इंटरेस्ट उनको कंट्रोल कर लेती है. हर गवर्नमेंट आती है उसको, एंड देन दैट होल थिंग इज शेल्फ्ड. सो आई थिंक दिस इज द टाइम. कोविड इज अ वेरी फैंटास्टिक चांस फॉर एन अपॉर्चुनिटी. आप कुछ भी कर सकते हैं आज, and nobody can challenge you because the things in the world are so different and here also. So why can't we take this as an opportunity, this COVID, as a fantastic opportunity for Pakistan, and take all the tough decisions and get on with it. Thank you, sir. Mumtaz Malik Saab, you have your hand up. Do you want to do a short question? Very short, time nahi reh gaya. Mumtaz Malik Saab, are you there? Unmute. Thank you very much. मेरा नाम डॉक्टर मुमताज हसन मलिक है. I'm a professor of textile engineering in University of Management and Technology, लाहौर. दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ. एक तो हमने कॉटन प्रोडक्शन की बात की. There was a time when we used to say that Pakistan is the third largest country of cotton consumption and fourth largest country of cotton production. But it is not like this now. In 2019, we produced simply 1.66 million bales, whereas Brazil produced 2.78 billion bales. It means they produce almost 68-70% more cotton than Pakistan. So this is a serious issue. We need to improve our cotton, and for that purpose, we need to see what India did a couple of years back when they started growing they started working with Monsanto, they started growing BT cotton. So this is a thing we should look at that. Number one. Number two is our ginning industry is too bad. We spoil our fibers, and we need to improve our ginning industry. We have about 1,200 ginning factories in Pakistan, but none of them is based on new technology. They all are 100 and 150 years old technology. So that is the area where Pakistan needs to see how we can improve our ginning industry. Or do we really need 1,200 ginning factories? Or with the present production, we need hardly 200 to 400 ginning factories, and we can set up very good ginning factories with a small amount of capital. Number three is we are generally using cotton, and our textile industry is based on cotton. But as other speakers said, that man-made fibers, including regenerated fibers and synthetic fibers, are almost 75%. So we need to see how we can use those fibers, particularly viscose fiber is abundantly used in the world. That is our requirement. Number four is our yield in textile industry, particular cotton, is too low. We have around about 86 or 85% yield when we produce carded yarn. So it means we need to improve the content of, we need to improve the content of wastages or the trash we have in our cotton. That is also, and that can be done, number one, during picking, and number two, during ginning. So Thank these you. are next, sir. Thank next you, is, I'd like to speak, sir. जी I'd बिल्कुल like to have
Ji, Shahid Sattar, go ahead. First of all, I'd like to point out that the textiles is a international commodity. You cannot have pricing of inputs more than the rest of the world. If you do, you will price your exports out of the market. It is not a regulated market. So having a support price which puts the price higher than external cotton is going to defeat the very purpose of supporting farmers. Secondly, it was stated that APTMA had the control of PCC and did not do anything. No, sir. APTMA had PCC for 6 months before it was taken away from APTMA, before it could reform or do any of the things that it had wanted to do so. Then again, going forward, it is wrong to blame APTMA for all those things, because we have been fighting that all along, that we need proper research organizations which spend and which actually do some research. Our current PCC spends 80 to 90% of its budget on just salaries. That's simply not sustainable. So again, going back to the point that if you are an internationally traded commodity, you cannot have costs higher than international rates. And if you do, you will not have an industry. Who would like to speak, please? Ji, anybody else wants to say anything, Ji? Shahid Sahab, do you want to have any last word? Ji. May I? Ji, go ahead, Ji, Khalid Sahab. Ji, bilkul. जी थैंक यू वेरी मच नदीम साहब. मैं एक दो तीन जो क्लैरिफिकेशंस करना चाहूंगा जो स्पीकर्स ने बात की. एक तो ये कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सीड एक्ट, प्लांट ब्रीडर्स राइट एक्ट, ये सब के सब इन प्लेस हैं. प्लांट ब्रीडर्स रजिस्ट्री की पोजीशंस अखबार में एडवर्टाइज हो चुके हैं और इंशाल्लाह वो अगले 2-1 महीने में उसकी हायरिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद लोग अपनी एप्लीकेशन वहां पे जमा करा सकेंगे. आपने जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग की बात की, हेज ट्रेडिंग की, बिल्कुल आपने सही, 70s में ये प्रैक्टिस होती थी और इससे बहुत अच्छी हमारी कॉटन की क्वालिटी भी ठीक थी और बाकी चीजें भी, प्राइसेस भी ठीक थी. उसके बाद तो आज ही हमने पीमैक्स के साथ, पाकिस्तान मर्केंटाइल के साथ किया है और इसको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली ये 2002, 2005 और उसके टेक्सटाइल पॉलिसीज में भी ये अप्रूव की है कैबिनेट ने, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. एप्टमा की ही इसमें अपोजिशन थी और जिस तरह आज बशीर साहब ने कहा, आई होप कि आप एप्टमा इसको सपोर्ट करेगी और हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकेंगे. एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही वो ये है कि एप्टमा के तमाम मेंबर्स यहाँ पर अपनी कास्ट ऑफ प्रोटेक्शन की बात, लेकिन जब हम एवरेज पाकिस्तान के प्रोडक्ट भी हैं वो इंटरनेशनल में सबसे कम दाम पे बिक रहे होते हैं. तो अगर पाकिस्तानी टेक्सटाइल कम्पिटिटिव नहीं है तो फिर ये लोएस्ट प्राइस पे क्यों है? फिर इसको कुछ न किसी न किसी मुल्क से तो ज्यादा प्राइस पे चीजें बेचनी चाहिए. Good point, see, very good point, Khalid Saab. जी, anybody else wants to say something? नहीं तो फिर let's go to Shahid Sattar, who helped me organize this seminar. Shahid Saab, you have the last word. Can I have the word because Sattar Saab is not there? Go ahead, Bashir Saab. Go ahead, Bashir Saab. Go ahead. I think why we get the lowest prices because of this law and order situation in Pakistan for an travel advisory from all the countries in the world. No foreign buyer has been freely coming here. We've had to really drag them here, literally, and we've had to work very, very hard. So when we are doing distressed sales, first they will go to Bangladesh, they'll go to Vietnam. Whatever is left over and whatever is the cheapest, they will buy from us.
we've been working under a lot of handicaps. This Afghan war has cost us a fortune in direct losses, which are there, which are very, very difficult to explain to the common man, okay, why these things are happening. I remember the days when all the foreign airlines used to come here, or direct flights were here. Everything is gone from Pakistan. So you can't just blame that textile industry is the one who is doing this. We are part of the whole of Pakistan. Whatever has happened to it, we also are paying the price. We can't get better prices because the customer wants to. Everybody says my wife cannot travel to Pakistan because they are the designers. The fashions is dominated by the women mostly, and their families are not allowing them to come to Pakistan. So these are hidden losses which we have to take care of. And now the law and order is improving. I hope the travel advisory goes away, and so 1 or 2 countries have reduced it. So I think we are moving in the right direction, but I think we have to move fast. I don't think Pakistan understands that today you have to be flexible, nimble, and rush and do things. We are still in that old way of working, and I think PIDE can really take a role in this, which they are doing this research, which I think will be very, very helpful. And we are looking forward to it, and whatever support APTMA should give to it, or the other members of the all, from the farmer right up to the value-added chain, up to fashion. I think Pakistan is doing very good on fashion, but we don't have access to the markets. So now we are getting access. We got GSP Plus only a few years ago. We had to fight for it. Bangladesh had GSP. Bangladesh is duty-free for every country in the world. Egypt has, the whole Africa has duty-free to all over the world. Our goods are, in a lot of countries, we have to pay duty. So we have to reduce the price because that duty has to be adjusted. So we have to, be like for like. We can't just say apples and oranges, are the same. Pakistan has so many handicaps which the ordinary man doesn't know about because they're not so involved, and the textile industry has not been able to explain really and go and has a narrative to explain to the people what handicaps we've been working under. Now Canada is duty free. Now it's got 18 to 22% duty, and there's no duty in Bangladesh. There's no duty on Eastern Europe. There's no duty from Africa. Only Pakistan has duty. So how can Pakistan compete in Canada? So, these are the things which people don't understand, why we have to sell cheaper and cheaper to get market access. So thank you so much, Nadeem Saab, again. Thank you, Ji. Bashir Saab, we are with you. If Pakistan's industry grow, we all grow. So we are absolutely with you. We will work with you. Shahid Saab, you have the last word. Shahid Sattar. Thank you very much. I'd just like to say that this is the first of 3-4 webinars that we'll be doing. And the others will be focusing on other parts of the value chain. Today was basically on inputs and raw materials. So please do attend those, and you'll find a lot of new ideas and a lot of new innovations that are going on in the market on this. Thank you. Ji, just to further that, I think quite frankly, PID is your think tank. It's a national think tank. Our job is to try and extend the debate in every area. We want to be constructive. We want to be helpful. So we have done series of webinars on the financial markets, on the banking sector, on human resource management, on innovation, and we will continue to do more on energy. We will continue to do more because of the fact that we used to just write papers and put them in the drawer, and we think that's a wrong idea. We must engage with everybody. There must be a national debate for us to truly understand the situation. We must pick your brains, and we must try and show that to the society, and we must create a broader debate around the country. So with that, I thank you all, and I will call upon you people again to help us think through things to understand the country. After all, it is our country. We have to make it grow, and we must accept the fact that we cannot lose, that we will be winners in the world. We can only win if we pull together and think our way through our problems. Thank you all. Thank you very much. Thank you, Shahid Sattar, for arranging this. My appreciation to everybody. Thank you. Bye-bye. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.